Hey everyone, welcome back to my channel. This is पलक और आज हम बात करने वाले हैं Reaquil के ऑक्सीबेंजोन एंड ONC फ्री सनस्क्रीन के बारे में. So this video is going to be a review video and we are also going to discuss ingredients के deep dives along with brand के जो भी claims यहाँ पे mentioned है. This specific sunscreen comes in tube के packaging. This specific tube is of 50 grams और इसका MRP है 395 rupees which makes it up to nearly 8 rupees per gram. ये यूजुअली 350, 370 या 395 इसी रेंज में मुझे देखने को मिला है. मैंने कभी यूजुअली Reaquil के साइट पे बाय वन गेट वन वाला सेल नहीं देखा. लेट मी नो इफ यू हैव एनी आइडिया कि Reaquil बाय वन गेट वन सेल रखता है तो. सो नाउ लेट्स गो थ्रू द लेबल. So this is a SPF 50 PA+++, that is 3 pluses. This is a broad spectrum sunscreen. The brand claims it to have no white cast. It prevents acne breakouts, it calms irritated skin and it has creamy formulation and it is suitable for oily acne prone skin. Also, as its name suggests, it is oxybenzone and ONC free sunscreen. So these two products are like as a potential irritants to acne prone skin. So these two are absent in this sunscreen. Another point to note, यहाँ पे कहीं पे भी mention नहीं है कि this is waterproof or sweat resistant, and instead it is mentioned कि repeat after every 6 hours or after swimming or heavy sweating. So please note, this is not waterproof or sweat resistant. Before moving ahead, let me tell you, I have oily acne prone skin and I have applied Minimalist का vitamin B5 moisturizer. This is I just wanted to tell you ये because we are going to test it out on half of my face. तो मैंने already apply करके रखा हुआ है face में. It has this consistency. इसकी कंसिस्टेंसी फेविकॉल की तरह है. आई मीन अगर आपने फेविकॉल को लेकर के ऐसे रब किया है तो वो जैसा फील होता है ना, सिमिलर वे इट फील्स. हाउएवर इट इज़ नॉट स्टिकी लाइक दैट. हमने क्योंकि हाथ पे ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है तो आई एम गोइंग टू अप्लाई अ जनरसली गुड अमाउंट ऑन माई हैंड्स. मेरे हाथ में ऑलरेडी पहले से कुछ भी लगा हुआ नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई यहाँ पे. So as you can see, यहाँ पे मुझे कुछ भी पिलिंग महसूस नहीं हुई है and it kind of blend काफ़ी beautifully within just 10 seconds or so. तो इसको अभी हम कुछ देर के लिए रहने देंगे to sink in properly. Meanwhile, I'm going to apply it on half of my face. Since मेरे face में already moisturizer लगा हुआ है तो let's see कि ये कैसा react करता है उसके साथ. I've applied this on right side of my face और इसे इनिशियली लगाते टाइम ही मुझे पिलिंग महसूस होने लगी. As you can see, यहाँ पे मुझे पिलिंग दिख रहा है इधर और इवन यहाँ पर भी. So this might be the case कि ये मेरे मॉइस्चराइज़र के साथ प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाया हो और शायद ये कारण हो इसका पिलअप होने का. बट लेट्स सी, बिकॉज मैंने अपने हाथों पर भी अप्लाई किया है जिसमें पहले से कुछ भी अप्लाइड नहीं था. तो वील री अप्लाई यहाँ पे कुछ देर के बाद एंड विल सी कि क्या यहाँ पर भी मुझे पिलिंग दिख रहा है. मीनवाइल जब तक ये सिंक इन हो रहा है, लेट्स गो इनटू द इंग्रेडिएंट्स इन डिटेल. तो यहाँ पे जो पहला यूवी फिल्टर है दैट इज ऑक्टोक्राइलिन. दिस इज अ ओल्ड जनरेशन केमिकल फिल्टर. इट गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट UVA एंड UVB. दिस इज हाईली फोटो स्टेबल. मतलब ये इतना फोटो स्टेबल है कि इसके साथ यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट जो फोटो स्टेबल ना हो वो भी ऐड किए जाए तो ये उन्हें सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ फोटो स्टेबिलिटी. द नेक्स्ट UV filter here is Tris Biphenyl Triazine. This is also known as Tinosorb S. So this is a new generation UV filter. It gives protection from both UVA and UVB. This is also highly photo stable. Moving on to the next UV filter, so that is Octisalid. This is again a old generation chemical filter. This gives protection from UVB. This is not so photo stable, but since यहाँ पे octocrylene present है तो it supports बाकी जो weak photo stable components होते हैं उसको.
सो इट माइट हेल्प दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को भी फोटो स्टेबल बनाने में. Moving on to the next UV filter, that is Bimotrinazole. This is also known as Tinosorb A2B. This is again a new generation UV filter. It gives protection from both UVA and UVB, and this is also highly photostable. So these are all the UV filters present यहाँ पे, and I believe this is a great combination. It has both new generation and old generation chemical filters. Since यहाँ पे कोई भी mineral filter present नहीं है, so this sunscreen is a pure chemical sunscreen. Coming on to the humectants and moisturizers present here. So here we have glycerin and propanediol. I think both are great humectants. Both gives काफी अच्छा moisture retention. So this is like a tick mark for me. It also has antioxidants and other soothing ingredients such as aloe vera extract, urol BT. Urol BT is olive leaf का extract, and then vitamin E. तो ये तीनों antioxidants हैं. ये तीनों ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है. तीनों ही सूदिंग इंग्रेडिएंट्स है, तो इन केस यू हैव एक्ने प्रोन स्किन तो दिस वुड वर्क काफ़ी अच्छा फॉर यू. इट ऑल्सो हैज़ वेरियस एमोलियंस एंड टेक्सचर एनहांसर्स इंक्लूडिंग सिलिकॉन के इंग्रेडिएंट्स भी. सो इट हैज़ डाईमेथिकोन एंड कैप्रिलाइल मेथिकोन. और इफ़ यू आर समवन who feels ऐसा irritants after using silicone based चीज़ें, तो this might not be for you. But if you don't know about silicone, so silicone लगाने से usually if you have ऐसा काफ़ी pores वगैरह, तो वो उन चीज़ों को blur out कर देता है. It helps you in giving ऐसा smooth finish, matte finish, non shiny appearance. उस चीज़ों के लिए silicone बहुत अच्छा होता है. It also has काफ़ी सारे emulsifiers and film forming agents including silica and microcrystalline wax. तो ये जो दो ingredients हैं, ये oil को absorb करने में help करता है. It helps in giving matte finish. तो इफ़ यू आर समवन जिसकी बहुत ऑयली स्किन है, जिसकी बहुत एक्ने प्रोन स्किन है, आपका बहुत ऑयल प्रोडक्शन होता है, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू ऐसा सीबम का प्रोडक्शन. इसको लगाने से इट विल एब्जॉर्ब सारा ऑयल एंड इट टेंड टू गिव यू मैट फिनिश. इट ऑल्सो हैज़ फ्रेग्रेंस इन इट विच इज़ समथिंग विच आई डोंट रियली लाइक. हाउएवर वो फ्रेग्रेंस काफ़ी कम है विच इज़ नॉट रियली बॉदरसम फॉर मी. बट या थोड़ा सा फ्रेग्रेंस है इसमें, तो इट माइट अफेक्ट यू इफ़ यू आर someone who does not prefer fragrance. It has काफ़ी अच्छा combination of moisturizing agents और soothing ingredients. So I think this is really great for acne prone oily skin. I think this can also be used in humid environment because it tends to give matte finish. मैंने भी जो लगाया I feel कि काफ़ी matte finish है. मुझे उतना shiny feel नहीं होता है इसको लगा करके. So this is really great for that matte finish. However, I feel कि मैंने इसको जिस पार्ट पे लगाया है वहाँ से मुझे थोड़ा स्वेटिंग हो रहा है, और जिस पार्ट पे नहीं है वहाँ पे मुझे स्वेटिंग वाली चीज़ उतनी महसूस नहीं हो रही है. बट या मतलब इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. सो इट माइट बी द केस कि आई एम फीलिंग दिस और यू माइट नॉट फील ये वाली चीज़. सो या दैट्स ऑल अबाउट इंग्रेडिएंट का डीप डाइव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरा सनस्क्रीन का एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस ऑन माई फेस एंड माई हैंड. So let me wait half an hour more ताकि completely sink in हो जाए और हम इसका एक री एप्लीकेशन भी कर लें. उसके बाद then we'll review. Alright, so it's already half an hour जब मैंने इसे लगाया था. So on my face, I believe कि ये काफ़ी अच्छा blend हुआ है. However, I feel यहाँ पे थोड़ा सा white cast. You might not be able to see इसको अच्छे से क्योंकि I have fair skin, तो ये उतना मेरे स्किन पे दिखता नहीं है. But since अगर आप इसे डार्कर स्किन पे लगाएंगे तो आई बिलीव ये थोड़ा सा वाइट कास्ट वाली फीलिंग आपको देगा. और ये बहुत पिल ऑफ हुआ है जहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है उस स्पेसिफिक एरिया में. हाउएवर मेरे हाथ पे जहाँ पे कुछ भी लगा हुआ नहीं था पहले से, यहाँ पे मुझे कोई पिलिंग का इफेक्ट नहीं दिखा. यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्लेंड इन भी हुआ है. यहाँ पे मुझे उतना वाइट कास्ट वाला इशू भी नहीं दिखा. सो लेट्स गिव इट अनदर ट्राई. एक बार और हम इसके ऊपर रीअप्लाई करके देखते हैं. हाथ में रीअप्लाई करने के बाद भी मुझे कोई पिलिंग नहीं दिखी. सो आई बिलीव इट्स ड्यू टू माई मॉइस्चराइजर ओनली कि वो पिल ऑफ हो रहा है ऑन माई फेस, और ये काफ़ी बुरे तरीके से पिल ऑफ हो रहा है बेस्ड ऑन मेरे हैंड्स का एक्सपीरियंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन. तो आई डू फील यहाँ पे भी थोड़ा मुझे स्वेटीनेस फील हो रहा है जहाँ पे मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया है. इसमें वाइट कास्ट मुझे उतना नहीं दिखा एज कम्पेयर टू मेरा फेस. मेरे फेस पे मुझे काफ़ी वाइट कास्ट दिख रहा है. आई थिंक कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है.
बट आई कैन सी उसको, मे बी बिकॉज ये पिल हो रहा है तो दैट माइट बी द केस कि ये कहीं कहीं पर पिल ऑफ हो रहा है और वहाँ पर वाइटीनेस आ गया है. However, that's not the case with my hand. It had synced in beautifully. So yeah, that's all about today. I hope you enjoyed the video. Let me know if you had थोड़ा different experience of using this, because sunscreen का formulation हर एक batch के production के साथ थोड़ा सा change हो सकता है. So let me know if you had different experience, then please comment down below. And yeah, that's all about today. See you there in the next video. Bye bye.